Hello students, in previous part we have studied about the Mendel's monohybrid cross. In Mendel's monohybrid cross we have seen that in F1 progeny only one pair out of one pair of traits, one trait can be resembled, and that is called dominant, and this law was known as a law of dominance. Next, in this part we will study about the what is incomplete dominant and codominant. Incomplete dominant. What is incomplete dominance? It is the intermediate characters seen by the F1 generation. F1 generation यानी जब वन पेयर ऑफ ट्रेट्स का आपस में क्रॉस कराते हैं, टू पेरेंटल का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर जो जनसंख्या प्रोड्यूस होती है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, that does not resemble to its parent. Both of parents से किसी से रिजेंबल नहीं करते. That is called incomplete dominance. It is the intermediate characters represents in F1 generation, or we also can define the offspring produced from two parental या two parents do not resemble both of the parents in F1 generation. कि जो स्ट्रिंग F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं उनके कैरेक्टर्स दोनों पेरेंटल्स किसी से भी मैच नहीं करते. दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. We can explain this process by the taking of an example of snapdragon plant. We can explain this process with the help of snapdragon plants. Snapdragon plant which contain red or white color flowers. This plant contain red or white color flowers. Red is dominant and whereas white is recessive. रेड इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैपिटल आर से, और वाइट को किससे करते बेटा? सेम अल्फाबेट लेना है लेकिन हमने कैपिटल और स्मॉल में चेंज करना है. यदि रेड को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, यू कैन आल्सो राइट कैपिटल डब्ल्यू भी, कोई वर्ड ले लीजिए, लेकिन अल्फाबेट वही हो. स्मॉल डोमिनेंट होंगे वो कैपिटल और रिसेसिव होंगे वो स्मॉल लिखे जाते हैं. वाइट जो हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? स्मॉल. व्हेन मेंडल क्रॉस दिस snapdragon red flower with the white flower, in F1 generation all the flowers are produced pink in color, not resemble to red or white. तो red और white का आपस में क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोड्यूस होना है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर small r, and this one is also capital R small r. In F1 generation all the flowers are produced in pink color. Pink is the different from both the parents. Parent कैसे थे? रेड और व्हाइट, लेकिन F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे पिंक हो गए.
When Mendel crossed again this F1 generation, he saw that these all traits are separated from each other. When Mendel again crossed F1 generation flowers, then he saw that all the characters or traits separated from each other. मीन्स F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे कैसे थे? पिंक मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये थे ना। तो एक पेयर ट्रेड्स इसी में से लेते हैं। जब इनका अगेन क्रॉस कराया कि दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये दोनों स्मॉल। यहां उसने चेक किया कि एक फ्लावर तो रेड, एक फ्लावर व्हाइट और दो इंटरमीडिएट रह गए कैसे? पिंक कलर। जस्ट दिस एक्सपेरिमेंट विज आल्सो रिजेंबल टू द मेंडल मोनोहाइब्रिड। क्यों? यदि यहाँ पर फिनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप देखते हैं, करेक्ट वही है। व्हाइट से यदि कंपैरिजन करते हैं रेड और पिंक, कोई 3:1 आता है। दूर से देखेंगे तो पिंक भी हमें ऐसे रेडिश कह सकते हैं। और यदि जीनोटाइप चेक करते हैं तो 1:1 है और ये 2:, that also resemble to the monohybrid growth. Clear? This is the incomplete dominance. What do you understand by incomplete dominance? In incomplete dominance, when one pair of traits cross with each other, the F1 generation offspring do not resemble to its parent. That is intermediate, that is separate from both the parent. This type of process is known as incomplete dominance. For example, snapdragon का इसमें एग्जाम्पल और भी आता है। एक आता है डिजीज phenylketonuria. Phenylketonuria is disease caused by the lack of phenylalanine enzyme, कह सकते हैं phenylalanine अमीनो एसिड। बॉडी के अंदर phenylalanine अमीनो एसिड बनता है, एंजाइम बनता है, उसकी लैक अमाउंट हो जाती है तो उसके कारण से phenylketonuria डिजीज हो जाता है। phenylketonuria के अंदर कुछ प्रोसेस होती है जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेशन, वो हमारे कोडोमिनेशन में चला जाएगा। मेंटली रिटार्डेशन जो शो कर सकते हैं वो, उसके साथ साथ स्किन हेयर लॉस भी होता है, स्किन का कलर चेंज होना रहता है, मतलब काफी कैरेक्टर शो हो जाते हैं, तो वो भी कह सकते हैं। अदरवाइज आप ओनली स्नैपड्रैगन का ही कीजिए। क्लियर? एक दूसरा इसी प्रकार से इसमें पी प्लांट का कीजिए बेटा, वो छोड़ दीजिए, इसमें कीजिए पी प्लांट का। मेंडल ने इनका भी करवा के देखा क्रॉस। पी प्लांट ताल भी थे, ताल की लेंथ कितनी थी? नियरली 6 फीट के आसपास। और ड्वार्फ थे, इनकी लेंथ कितनी थी? नियरली 1 फीट के आसपास। जो टाल प्लांट थे, इस टाल प्लांट के अंदर स्टार्च की अमाउंट ज्यादा थी, इट कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टार्च। एंड ड्वार्फ प्लांट जो थे जिनकी हाइट 1 फीट के आसपास थी, इसमें स्टार्च लेस अमाउंट में, इसमें एक्सेस अमाउंट में और इसमें लेस अमाउंट। इधर क्लियर? उसने स्नैपड्रैगन का कराया एक्सपेरिमेंट, उसके साथ साथ पी प्लांट का भी आपस में क्रॉस कराया ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्च। The pea plant which are very tall, they contain excess amount of starch, and the pea plant which are dwarf, which has the short length, they contain less amount of starch. When he, यहाँ पर आप कैसे starch को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल W से। excess amount starch को किससे कर देते हैं? कैपिटल W से। तो ये किसमें कह सकते हैं? excess starch, ठीक है। और जो less amount of starch उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल W से कर देंगे, क्योंकि अल्फाबेट वही होना चाहिए। एक्सेस है, इसका मतलब डोमिनेटेड हो, तो एक्सेस को हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दिया, और लेस है तो लेस स्टार्च, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम स्मॉल W से। जब उसने एक्सेस स्टार्च प्लांट का लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च से क्रॉस कराया तो F1 के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गए? कैपिटल W स्मॉल W, फिर कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल। F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट प्रोड्यूस होना है उसमें उतनी स्टार्च नहीं थी, इनसे तो ज्यादा थी, जो ड्वार्फ थे उनसे ज्यादा थी,
और टाल थे उनसे कम थी। इसका मतलब दोनों से मैच नहीं हुई ना, तो ये उसने शो कर दिया सेम इसी प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंट। व्हेन मेंडल क्रोस्ड excess amount of starch pea plant with less amount of starch pea plant in F1 generation he saw that all the plants which are produced in F1 progeny do not contain the starch amount equal to their parental plant. It means the amount of starch is less than the tall plant or greater than the dwarf plant. क्लियर? न तो वो एक्सेस प्लांट जो चले गए यानी F1 प्रोगेनी के अंदर जो टाल प्लांट थे उतनी स्टार्च नहीं थी, उससे तो लेस थी, लेकिन जो ड्वार्फ प्लांट थे उनसे ज्यादा थी। इसका मतलब इंटरमीडिएट रहेगी, दैट इज नॉट रिजेंबल टू इट्स पेरेंटल, और पेरेंट के समान नहीं होती है F1 जनरेशन, उसी को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उस एग्जांपल उसने इस प्रकार से शो कर दिया था, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। क्लियर?